Hello everyone. So, can you see behind me various fruits and plants and trees? Yes. Now you can see various flowers they are present. Some of them they may be are familiar to you, but some of them they are having a different habitat to live on. So we are not able to see them directly. Where are these plants placed? What are the criteria which were decided to place them in a different group? Let's see about the classification and the study of the kingdom plant. So if I talk of this kingdom plant, you can see these particular plants. But before that, before its classification into so many groups, or you can say divisions and classes, various scientists they came on and they started defining it. They started giving a lay or a foundation for how we can start with this particular classification. So for this classification to go ahead, we have various things to study. Whether that particular plant is having the root, stem or leaf, if it has is it having the xylem and phloem. So for that study we have some of these systems of classification. If I talk of this artificial system of classification, I could see there are three scientists involved: Theophrastus, the Aristotle, and the Linnaeus. When I talk of this Theophrastus, he was the one who actually introduced that the plant could be divided into herbs, shrubs, and trees. When I talk of this Aristotle, he was the one to say that yes, the plants, the animals could be divided as anemia and anemia. Anemia, that are without the RBC. Now, without RBC basically means the non-animal thing, that means the plants. And anemia refers to the RBC content. That means they actually talked of the animals over here. For this Linnaeus, he divided normally into a two kingdom classification, that is plants and the animals. But whatever the criteria that was selected by them was purely based on the vegetative character. It was basically the vegetative character which came into account, and the reproductive structure and the vegetative structure, they were given an equal importance. There was no such discrimination about the what all about the stamen, the pistil, how the fusion of the gametes could take place. So the system was transferred from the artificial to the natural system of classification. नेचुरल सिस्टम किसने दिया था? बेंथम और हुकर ने. और ये they were more into anatomical feature. उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बेसिकली बताया कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके टिश्यूज अलग अलग होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनके टिश्यूज अलग अलग होते हैं. सो व्हाई नॉट गो एंड स्टडी द टिश्यू लेवल? Why not study what kind of a thing a plant actually has? So basically, natural system of classification of Bentham and Hooker was based on this anatomical feature. Now, if I talk of this third system, that is cytotaxonomy. Cyto means cell, classification through taxonomical level. So, if I talk of this cytotaxonomy, I am basically talking of the chromosomes. I'm talking of the chromosomes. If I have a cell, if I have a nucleus, इस न्यूक्लियस की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को कौन डिफाइन करता है? ये जेनेटिक मटेरियल इसका. एंड दिस जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली क्रोमैटिन. अब ये क्रोमैटिन जब कंडेंस होता है, दिस रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमोसोम. सो ये बन गया हमारा क्रोमोसोम. जब सेल ने डिवाइड होना है, तो व्हाई नॉट स्टडी दिस क्रोमोसोम? अगर मुझे क्रोमोसोम पता है तो मैं सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर सकती हूँ? आई कुड इजीली आइडेंटिफाई. सो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम and how these chromosomes they are arranged, we actually classify this cytotaxonomy. Moving to the next one, chemotaxonomy. Chemo means chemical substance. तो अगर मेरे पास ये सेल है, इस सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होते हैं. अब ये ऑर्गेनेलिस की अगर मैं बात करूं, दे आर गोइंग टू इंटरैक्ट विथ ईच अदर. इंटरैक्शन मीन्स बेसिकली द मेटाबॉलिक रिएक्शंस. तो क्यों ना इस सेल के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को स्टडी करा जाए.
इसकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस, इसके मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स के बारे में पता लगाया जाए। एंड व्हेन वी विल गेट दिस थिंग्स, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्लांट जो है ये कौन से कैटेगरी में हम इसको क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। द अदर वन इफ आई टॉक ऑफ इज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल का मतलब ही क्या होता है, कुछ नंबर से रिलेटेड है। सो व्हाई नॉट गिव नंबर्स टू द कैरेक्टर्स। यहाँ हम क्या स्टडी करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी द कैरेक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यहाँ बेसिकली प्लांट्स की बात हो रही है, तो प्लांट्स के कैरेक्टर्स, और उन कैरेक्टर्स को दे दो कोड। यू आर हैविंग अ थैलोफाइट, यू आर हैविंग द रूट स्टेम लीफ, तो हम आपको इस कैटेगरी में रख देंगे। अगर आपके पास रूट स्टेम लीफ नहीं है तो आई कुड बी प्लेसिंग इट इनटू अ डिफरेंट ग्रुप। रूट स्टेम लीफ है लेकिन जाइलम फ्लोएम नहीं है, एक ग्रुप में चले जाओ। इफ रूट स्टेम लीफ भी है, जाइलम फ्लोएम भी है, सीड भी बन रही है लेकिन सीड में फ्रूट नहीं है, ओके, गोइंग टू अनदर कैटेगरी। सो लाइक दैट वे द कैरेक्टर्स दे आर फॉर्म्ड, और ये जितना भी काम होगा दिस विल बी फॉर्म्ड ऑन कंप्यूटर्स। हाँ होगा ये, this will be on the computers. So a character's codes, they are actually given. So this is the numerical taxonomy, and the other name for this numerical taxonomy is phonetics. Phonetics, the characters codes that we are going to give. And the last one if I talk of is the phylogenetic taxonomy. If I talk of this phylogenetic taxonomy, फाइलोजेनी का मतलब ही होता है एवोल्यूशन। फाइलोजेनी एक्चुअली रेफर्स टू द एवोल्यूशन थिंग। सो व्हाई नॉट सी द एवोल्यूशनरी बिहेवियर ऑफ द प्लांट्स, हाउ इट हैज इवॉल्व्ड। पहले रूट स्टेम लीफ नहीं होगी, फिर आएगी, फिर जाइलम फ्लोएम आएंगे। सो इस कैटेगरी को क्यों ना लिया जाए, it would be easy for classification. So the last thing says that go on with the evolutionary relationship, go on characterizing the things. यहाँ पे कोई फॉसिल की जरूरत नहीं है, मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिला फिर भी what we can do, we can study out their characters by using the other things. So this plant kingdom को तब तक हम properly study नहीं कर सकते जब तक हम उनके criteria को study ना कर ले। So for that criteria to study, I have this artificial system of classification. The artificial, then I have a natural, artificial given by the Aristotle, you can say. Then the natural one by the Bentham and the Hooker. Then you have the cyto means cell के अंदर chromosome की study. Then we have the chemo means chemical, तो chemicals की study से, metabolic reactions की study से we could be finding out the things कि yes, this plant is having the same metabolic product, so why not place this thing into the this category or in Thallophyta or in a Bryophyta kind of a thing. Then we have the numerical taxonomy, and if I talk of this numerical taxonomy, I will be giving characters a number, the codes, and these codes will be now specified into a particular group, and this is also known as phonetics. Moving to the last one, the phylogenetic, the evolution thing. अगर हमें पता लग जाए कि कौन से रेट से कोई डेवलप हुआ है, क्या क्या चीजें उसमें प्रेजेंट है, so we could be filling up this criteria. So this was all about the classification thing, the different classification criteria, the systems that were considered कि एक plant को हम कैसे categorize करेंगे. So let's now divide the plant kingdom. Plant kingdom is actually divided into or on the basis कि उसके पास root stem leaf present है या absent है. If root stem leaf तीनों ही चीजें एब्सेंट है, सो वी गिव अ क्राइटेरिया, हम उन सारे प्लांट्स को किस में रखेंगे, प्लेसिंग इट अंडर द थैलोफाइटा. थैलोफाइटा, उनकी बॉडी थैलस के जैसे होगी, इसलिए द वर्ड कम्स थैलोफाइटा. नाउ इफ आई हैव कि इनके पास रूट स्टेम लीफ तो है ही नहीं, लेकिन इनके पास वैस्कुलर बंडल्स यानी कि जाइलम और फ्लोएम, ये भी क्या है, एब्सेंट. बहुत प्रिमिटिव टाइप का ये क्या है, दिस इज अ प्लांट, दिस इज अ वेरी प्रिमिटिव काइंड ऑफ अ प्लांट, दिस इज अ वेरी प्रिमिटिव काइंड ऑफ अ प्लांट व्हिच इज नॉट हैविंग द जाइलम एंड फ्लोएम. अब
क्या हुआ, बॉडी एडवांसमेंट एवोल्यूशन होता जा रहा है, चेंजेस आते जा रहे हैं, तो चेंजेस की वजह से अब बॉडी डिवाइड हो गई, बॉडी के पास रूट स्टेम लीफ सब आ गए, लेकिन जाइलम फ्लोएम अभी भी नहीं आया. For that plant may have a criteria known as bryophyta. Bryophyta, ब्रायन, ये मॉसेस की तरह होते हैं. ये ऐसे सोचो कि आपके घर में कोई मैट बिछा दी हो, ठीक है, दैट मैट लाइक अपीयरेंस जो होता है, दैट इज ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रायोफाइटा. अब फर्दर एवोल्यूशन होती जा रही है, द प्लांट नाउ हैज डिवाइडेड, रूट स्टेम लीफ थोड़ा सा एडवांस होता जा रहा है, होता है ना, हम लोग भी बड़े हो रहे हैं, ठीक है, जो हमारे यू कैन से फोर फादर्स दे वर नॉट दैट मच एडवांस, अब धीरे 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 ईयर्स एंड ईयर्स चेंजिंग ऑन, तो जीन्स में चेंज आते जाते हैं, तो चेंजेस आ गए, रिजल्टेड इन वैस्कुलर बंडल भी आ गए, मतलब रूट स्टेम लीफ जिसके पास नहीं थी, अब रूट स्टेम लीफ जैसा कोई स्ट्रक्चर भी आया है, अब उसके साथ जाइलम फ्लोएम, बिना उसके कंडक्शन करना, वाटर मिनरल्स लेने हम एडवांस होते जा रहे हैं, तो हमारे जो नीड्स हैं दैट आर आल्सो डिफरेंट, तो प्लांट की नीड भी बढ़ेगी, नीड बढ़ेगी तो उसको क्या चाहिए, डिफरेंट थिंग्स चाहिए. सो फॉर दैट this particular plant now have got the root stem and leaf, they have got the xylem phloem, लेकिन अब और क्या बचा, seeds, आगे कैसे बढ़ेंगे, how they'll increase their population, वेजिटेटिव फ्रैगमेंटेशन है या वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक कितना हम डिपेंड रह सकते हैं. कैरेक्टरिस्टिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन लाता है, वेरिएशन नहीं आएगा जब तक, तो कैसे आगे बढ़ेगा. सो पता है सीड एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कहीं ना कहीं कुछ कंजर्व करके रखे, तो वो सीड अभी नहीं आई. So for that seed not present, we have a group known as pteridophyta. We have pteridophyta. Now pteridophyta के बाद सीड भी आ गई, और बढ़ गया प्लांट मेरा, ठीक है, प्लांट में कैरेक्टरिस्टिक बढ़ गई है. अब ये जो मेरा सीड प्रेजेंट है, इस सीड के अंदर अब ऐसे नेकेड सीड है, सीड्स दिखाई दे रही है. So we have the term as in we have the division as in gymnosperms, or we have gymnospermy, we call it as in gymnospermy. And अगर seeds present है और वो fruit में present है, so we have the group as angiosperm. चूंकि फर्दर क्लासिफाई होगा. नाउ अब हमने जो डिवीजन करी, तो हमारे पास इस डिवीजन में क्या क्या चीजें आई है. आई हैव गॉट what all things, I have got the first thing as in the thallophyta, thallus जैसा, ब्रायोफाइटा, मॉसेस, फर्न, जो आपके क्या होने वाले मॉसेस, जो आपके लैंड में दे आर गोइंग टू इंक्रीज द फर्टिलिटी, दे आर गोइंग टू मेक द सॉइल वेरी पोरस, ताकि दूसरे प्लांट सक्सेशन में उसको हेल्प आउट हो सके. देन वी हैव द नेक्स्ट वन, इफ आई टॉक ऑफ द टेरिडोफाइटा, एक ऐसा प्लांट जिसको बहुत ही स्पेशल एनवायरनमेंट चाहिए. स्पेशल एनवायरनमेंट कैसे स्पेशल एनवायरनमेंट, इसको चाहिए ठंडी जगह, इसको चाहिए वाटर, इसको चाहिए शेड. तो क्या ऐसे प्लांट हर जगह मिलते हैं? You won't be able to find at every place. Restricted environment. तो ये थोड़े हैं लेकिन इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि they were the pioneers, they were the one who started off some of the other things जो कि जिम्नोस्पर्म बनाने में बहुत बड़ा काम, उनका contribution. Then we have the next one as in the gymnosperm. मेरे पूरे हिल स्टेशन, मजा आता है ना घूमने में हिल स्टेशन पे, उस हिल स्टेशन पे बड़े बड़े अच्छे अच्छे पाइन ट्रीज लगे हुए हैं, कोन्स देख रहे हैं हम, गिरे पड़े, इतने अच्छे आर्टिकल्स बना के हम खरीद के लेके आते हैं. तो ये कौन सी पाइन से जो ब्यूटी नेचर की है, ये हमें एक्चुअली कहाँ मिल रही है, on the hills or mountains, so they are adapted to that particular environment. तो वहां पे उनके अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जो उसको हेल्प कर रही है. Then comes एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा डिवीजन जिसने पूरे अर्थ को अच्छे से संभाल के रखा. बड़े बड़े ट्रीज, मैंगो खा रहे, एप्पल खा रहे, कहाँ से आ रहे, ट्री से आ रहे, एंड हाउ दैट ट्री इज क्लासिफाइड, वो एक एंजियोस्पर्म. अब उस एंजियोस्पर्म में बनाना खा रहे हैं या एप्पल खा रहे हैं या फिर हम मैंगो खा रहे हैं. बनाना भी एक प्लांट से निकला है और मैंगो भी एक प्लांट से निकला है, डिफरेंस है.
एक मोनोकॉट है, एक डाइकॉट है। ये कैसे क्राइटेरिया? सो लेट्स सी दैट क्राइटेरिया। सो नाउ अब हमारा आ गया है हमारा ग्रुप दैट इज थैलोफाइट। थैलस जैसा फर्स्ट डिविजन ऑफ द प्लांट किंगडम दैट इज थैलोफाइट। न रूट है, न स्टेम है, न लीफ है। प्लांट की बॉडी कुछ इस तरीके से बनी हुई है। प्लांट को एब्जॉर्ब भी करना है। इसके पास सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? इट शुड हैव क्लोरोफिल। बिना क्लोरोफिल के तो प्लांट चलेगा नहीं। यूकैरियोटिक है ही, मल्टी सेलुलर है ही। बस क्या सारे मल्टी सेलुलर होते हैं? Some of the members of chlorophyceae, they may be unicellular, they may be multicellular, they may be filamentous, they may be colony. अलग अलग क्राइटेरिया। जब यहाँ बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी कैसी होती जाएगी? मल्टी सेलुलर बॉडी होती जाएगी। कल देख रहे हो क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी, रोडोफाइसी, भारी भारी नाम है। इन भारी भारी नामों में क्यों ऐसे इनको नाम दिए गए? What all thing they have specific? ऐसा क्यों है कि थैलोफाइटों को भी हम डिवाइड करें? Because of their color, because of this chlorophyll जो उसके अंदर चेंजेस ले आया। कुछ ऐसे पिगमेंट्स जिन्होंने इन पर्टिकुलर डिविजन्स के अंदर जो क्लासेस हैं इनको क्या कर दिया? फर्दर क्लासिफाई अप कर दिया। For example, if I talk of chlorophyceae, chloro is green color. तो ये जो मेरी algae है, that's my green algae. This is green algae. Phaeophyceae, ये मेरी brown algae है। पेपर आते ही बीपी बढ़ गया, क्लोरोफिल ग्रीन algae। पेपर आते ही बीपी बढ़ गया तो बीपी brown algae, Phaeophyceae. Then rhodo. Rhodo is red algae. R for red, R for rhodo. So अब लर्न करना आसान हो गया। Chlorophyceae the green algae, Phaeophyceae the brown algae and Rhodophyceae the red algae. Red, brown and green color. अब इसमें ऐसी क्या चीजें हैं जो इन्होंने इन सब को क्या बना दिया? यूनिक बना दिया। But that unique characteristics to study, if we talk of this green, the Chlorophyceae वाला thing, the Chlorophyceae इस प्लांट में अगर मैं देखूं कि बेसिक जो चीज है वो क्या है? मेरा क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्लोरोप्लास्ट है। एक ऐसा जो डिस्क शेप है, डिस्कॉइडल कह दो। एक वो जो कप शेप है, तो डिस्कॉइडल कप। इसमें थोड़ा डिजाइन बना देते हैं। एक स्पाइरल, एक रिबन और एक रेटिकुलेट। शेप्स लानोगे क्लोरोप्लास्ट की। डिस्क शेप है, डिस्क में कप रख दिया, कप पे डिजाइन बना दिया। कौन कौन से? स्पाइरल, रिबन और रेटिकुलेट। बन गया मेरा क्लोरोफाइसी। क्या कहा? क्या इंपॉर्टेंट है? क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है दैट इज क्लोरोफिल ए एंड बी। इसमें जो है दैट इज ए एंड सी। इसमें जो है वो है ए डी। बचपन की एबीसीडी काम आ रहे हैं। So we have AB, AC and AD. अब क्लोरोफाइसी में मोर ऑफ ग्रीन कलर है, ज्यादा वेरिएशन लाने की जरूरत नहीं है। सारे जो वेरिएशन आ गए वो फियोफाइसी और रोडोफाइसी में आ गए। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? फ्यूकोजैंथिन कलर पिगमेंट। फ्यूकोजैंथिन जो इसको कलर दे रहा है, एंड दिस कलर इज फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन color. Imagine करो, close your eyes for 1 minute or 2, you can see. आपको मैंने बोला चलो स्काई डाइविंग करते हैं, गए अंदर आराम से, मछलियां हमारे आसपास घूम रही है और नीचे जाते जा रहे हैं। We are sinking down, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ, डरने की जरूरत नहीं है। So we are moving down, 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 and then we see some plants there, fluttering up inside the water. अभी तक तो हम लीफ को फ्लटर करवा रहे थे बाहर, अब अंदर भी फ्लटर अप कर रहे हैं। कुछ प्लांट्स आराम से मूविंग डांसिंग ऑन बिकॉज ऑफ द वेव्स, ओशन। कोई वेल एकदम से झटके मार के जा रही है। What are these? These are kelps.
और ये केल्प्स आप देख रहे हो ना, कलर इमेजिन करना, अगर आपने डिस्कवरी ढंग से देखा है तो ब्राउनिश कलर, थोड़ा सा ग्रीनिश ब्राउनिश कलर आ जाता है, ऑलिव ग्रीनिश कलर, डार्क ग्रीन, इस तरीके का नहीं। सो दैट इज बेसिकली द केल्प्स एंड दे बिलोंग टू फियोफाइसी। अगला आ जाओ, रोडोफाइसी प्लांट है मेरे पास। अब बेसिकली सी का जो लोअर पार्ट है, अभी हमने देखा सी का जो लोअर पार्ट है उसमें हमें क्या मिला है, ये फियोफाइसी मिला है। रोडोफाइसी की अगर हम बात करें तो रोडोफाइसी कहाँ मिलने वाला है, रेड एल्गी है, ये हमें मोस्टली मिलेगा ऑन शैलो वाटर, ऊपर ऊपर तैरते हैं। इनको थोड़ा सा वार्म एनवायरनमेंट चाहिए, need a bit of warm thing, ठीक है। so they have shallow environment and warm kind of environment यहाँ पे इनको चाहिए। and ये रोडोफाइसी के अंदर they have a pigment known as phycoerythrin, बड़ा नाम हो गया बहुत, phycoerythrin, कोई डरना नहीं है। हमारे जो आरबीसी होते हैं क्या नाम होता है उनका, एरिथ्रोसाइट, मींस एग्जैक्टली वो आरबीसी में रेड कलर के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, एरेथ्रिन, एरेथ्रोसाइट। तो ये कौन सी एल्गी है, रेड, अब रेड है तो वर्ड ले लिया कौन सा, एरेथ्रिन, फाइको प्लांट रिलेटेड हो गया। सो फाइकोएरेथ्रिन, एडी, एसी फ्यूकोजेंथिन, और यहाँ हमें क्या मिल रहा है, वी आर मोस्टली गेटिंग द क्लोरोफिल ए एंड बी। नाउ अब सिर्फ इतना ही नहीं, talking of their characteristic on the basis of their cell wall, बचपन से एक ही चीज पढ़ी है, प्लांट सेल वॉल सेलुलोज, उसके आगे बढ़ते ही नहीं। सेलुलोज थोड़ा बहुत पेक्टोज भी पता है, अब आगे पढ़ेंगे तो हेमी सेल्यूलोज भी होता है। बट यहाँ जो, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन अभी बहुत प्रिमिटिव लेवल पे है, plants are very primitive kind of a thing. So उस primitive में, if I talk of this chlorophyce, if I talk of this phaeophyce or rhodophyce, so I have, if I talk of this as in chlorophyce, तो इसके पास जो cell wall है that is made up of the cellulose and pectin, बढ़िया है, cellulose and pectin, easy नाम है, जल्दी हो जाएगी, cellulose and pectin in case of the chlorophyce। सेलुलोज को तो छोड़ना ही नहीं है मैंने, सेलुलोज। और यहाँ जो मोस्टली मुझे सेल वॉल मिलेगी वो मिलेगी एल्जिन की, एल्जिन, एल्गी से बना लो, एलोफाइटा है क्या, इट्स एन एल्गी, तो एल्गी से बन गया मेरा एल्जिन। एंड इफ आई टॉक ऑफ दिस मेरा रोडोफाइसी, रोडोफाइसी में आई हैव सेलुलोज, भूलूंगी नहीं इसको मैं, बिना सेलुलोज के नहीं चलना, बचपन से गलत होना पड़ा है। सो एल्जिन प्लस कैराजिन, एल्जिन एंड कैराजिन, सो यू हैव सेलुलोज पेक्टिन, सेलुलोज एल्जिन एंड सेलुलोज कैराजिन। टॉकिंग ऑफ द नेक्स्ट, एज इन कि अगर मैं कहूं, देखो घर में रहना है, भूख तो लगेगी, काम करते हैं, भूख लगती रहती है, ये भी तो प्लांट है, खाना बना रहे हैं, कहीं ना कहीं तो स्टोर करके रखना ही है ना उस फूड को। तो यहाँ जो स्टोरेज होती है दैट अकर्स इन पायरेनॉइड्स, इट अकर्स इन दी पायरेनॉइड्स, पायरेनॉइड्स आर द बॉडीज इन विच द फूड इट इज एक्चुअली स्टोर्ड। और यहाँ जो फूड स्टोर होगा वो बेसिकली क्या हो रहा है, इट्स इन स्टार्च, थोड़ा थोड़ा सा ऑयल भी स्टोर हो जाता है, थोड़ा थोड़ा सा प्रोटीन भी स्टोर हो जाता है इन पायरेनॉइड्स। अब इतना ही आसान होता तो फिर इनको क्यों क्राइटेरिया, इनको क्यों अलग करते। तो यहाँ जो इसके अंदर स्टोर हो रहा है, इन इसके पायरेनॉइड में जो स्टोर हो रहा है दैट इज बेसिकली द लैमिनेरियन स्टार्च। क्या है, लैमिनेरियन स्टार्च। और इसके साथ साथ द नेक्स्ट वन इफ आई टॉक ऑफ, इसके साथ एक और होता है दैट इज मैनिटोल। लैमिनेट कर दिया हमने इस ब्राउन एल्गी को, हमारी दिल बीपी कहता है ना, बीपी से लर्न करना है, ब्राउन एल्गी फियोफाइसी। तो ये जो मेरा एल्जिन है, ये जो मेरा इसको कहेंगे पैरानॉइड्स है, इस पैरानॉइड में जो मेरा
stored product है, that is the laminarian starch and the mannitol. Talking of the last one, rhodophyceae. हम भी कुछ स्टोर करेंगे, इन सब ने किया है, हम भी बड़े हो रहे हैं, ये इनसे बड़े हैं. Evolutionary step if I talk of, तो rhodophyceae क्या होंगे, बहुत एडवांस हो जाएंगे. So now talking of this advanced thing, तो इसके पायरेनॉइड में क्या स्टोर्ड है, इसमें स्टोर्ड है आपका दी नेक्स्ट स्टार्च, जिसको हम क्या बोलते हैं, we actually talk it of as the Floridian starch. So ये जो क्राइटेरिया है, दिस इज स्टिल नाउ यू नो इनकम्प्लीट. अभी तक हमने क्लोरोप्लास्ट बता दिया, क्लोरोफिल बता दिया, सेल वॉल बता दी. ऑर्गेनिज्म कैसा दिख रहा है, ऑर्गेनिज्म के साथ पास 2 फ्लैजेला हैं, ठीक है, या फिर ऑर्गेनिज्म के पास 2 से ज्यादा भी फ्लैजेला हो सकती है. सो इट मे हैव 2 to 8 फ्लैजेला. This chlorophyceae member, they may have 2 to 8 flagella. लेकिन जो Phaeophyceae वाले होते हैं, उनके पास मोस्टली दी 2 flagella. कुछ ऑर्गेनिज्म जो मोस्टली क्या है, 2 flagella. Rhodophyceae पे टॉप ऑफ, Rhodophyceae के पास कोई ऐसा मेंबर नहीं है जो flagella वाले. देखो यही वो क्राइटेरिया थी जो लीनियर्स को परेशान करती थी. और यू कैन से दी अदर साइंटिस्ट दे वर गेटिंग कंफ्यूज्ड. प्लांट में डाले, एनिमल में डाले, क्या क्या है इनके पास, फ्लैजेला. फ्लैजेला मतलब मूवमेंट. तो इनको लगता था अगर मूव कर रहा है तो एनिमल है, स्टैग्नेंट है तो प्लांट हो सकता है. तो दिस फ्लैजेला, you know, they were also classified, means on the basis of flagella these plants they were classified. अब सारी चीजें हमें कहाँ मिलेंगी, we'll be getting in water. So mostly कैसा environment चाहिए इनको, need an aquatic kind of environment. लेकिन इस aquatic में भी क्या है, थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन है. भैया मुझे तो फ्रेश वाटर पसंद है, I am more into the fresh water, I am more into the marine water. Mostly marine, mostly fresh water. मिलेंगे, बाकी जगह भी मिलेंगे, लेकिन मोस्टली फ्रेश वाटर. ये आपके Phaeophyceae, ये आपको फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे. दे मे बी फाउंड इन दी ब्रैकिश वाटर और दे मे बी फाउंड इन दी मराइन एनवायरनमेंट. सी ओशन में भी मिल सकते हैं, विल बी फाइंडिंग इट इन दी सी और ओशन. सो क्राइटेरिया अलग अलग है, लेकिन इस क्राइटेरिया अलग अलग की वजह से हमने इन सबको क्या कर दिया, वी हैव डिवाइडेड दीज ऑर्गेनिजम्स. क्लोरोफाइसी ग्रीन कलर, क्लोरोप्लास्ट डिफरेंट शेप का, क्लोरोफिल ए बी, पैरानॉइड्स. देन किस तरीके की अरेंजमेंट है, जहां ये आपका क्लोरोफाइसी जितना ही सिंपल है, थोड़ी सी एडवांसमेंट आ गई Phaeophyceae में, थोड़ी सी और एडवांसमेंट हो गई किसके अंदर, Rhodophyceae के अंदर. If I talk of this Rhodophyceae, then Rhodophyceae या Phaeophyceae या Chlorophyceae, इन सब के स्ट्रक्चर क्या हो गए, they got changed. अलग अलग चीजें कुछ फॉर्म हो गई. अगर मैं इसको बनाई तो I just form this structure, हो गया मेरा Chlorophyceae. थोड़ा सा ऐसे मिल जाएगा या फिर मुझे इस तरीके से मिल जाएगा, कॉलोनियल फॉर्म मुझे बनानी है, और I can say I'll get कुछ इस तरीके से हमें कुछ प्लांट मिल जाएंगे. Phaeophyceae की अगर बात करूं तो Phaeophyceae में हम रूट स्टेम लीफ तो नहीं बोलते, बट वी गिव अ नेम एज होल्ड फास्ट. ठीक है, जो रूट है, रूट को भी कॉल इट एज एन होल्ड फास्ट. देन जो स्टेम होती है दैट इज नोन एज स्टाइल. एंड जो लीफ होती है, लीफ को हम किसी भी तरीके से अगर अरेंज है तो लीफ अगर प्रेजेंट है तो वी कॉल इट एज एन फ्रॉम. नाम अभी थोड़े से फैमिलियर नहीं है ना, तो याद करना पड़ेगा. रूट जो है हमें संभाल, प्लांट को संभाल के रखेगा, होल्ड करके रखेगा, तो होल्ड फास्ट, जल्दी जल्दी होल्ड करो. स्टेम जो स्टाइप बन गई. फ्रॉन्ट जो है वो फ्रेंडली है, लीफ फ्रेंडली होती है हमारी, तो जो लीफ है वो बन गई मेरी फ्रॉन्ट. So Phaeophyceae में we have holdfast, we have stipe, and we have frond or the leaf. Next, if I talk of Rhodophyceae, ऐसे ही कुछ एडवांसमेंट स्ट्रक्चर इसके अंदर आए.
Now, talking of the next one, if I say the reproduction part, reproduction. अगर reproduction की बात करते तो reproduction में they may undergo the vegetative kind of reproduction. ये मेरा प्लांट है, इसको ब्रेक कर दो फ्रैगमेंट में, दो फ्रैगमेंट बनेंगे, ये फ्रैगमेंट और ये फ्रैगमेंट दोनों ही क्या कर सकेंगे, रिप्रोड्यूस. सो दिस इज फ्रैगमेंटेशन. जो आपका एसेक्सुअल मेथड है, do it with the help of the spores. Do it with the help of the spores. Now moving to the next one, as in the sexual reproduction. Sexual reproduction में सबसे ज्यादा important क्या चीज है हमारी, gametes. What all important thing we should have? We should have gametes, and these gametes they may be अलग अलग टाइप की हो सकती है, जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट से, ये मेल है ये फीमेल है, अगर इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम है, सो वी गो फॉर अ टर्म नोन एज आइसोगेमस. क्या बोलते हैं हम इसको, आइसोगेमस. अब अगर एक बड़ा है एक छोटा है, सपोज मेल इज बिग एंड द फीमेल वन इज द स्मॉलर वन, वी कॉल इट एज एन अनाइसो. अलग अलग हो गया, अनाइसो, एक बड़ा एक छोटा, देन इट इज अनाइसोगेमस. नाउ इफ आई टॉक ऑफ कि मेरा जो मेल है वो स्मॉल है, लेकिन फीमेल जो है वो दैट इज कंपैरेटिवली लार्ज, सो दिस इज मेल गैमेट एंड दिस इज फीमेल गैमेट. अब दोनों गैमेट में कौन सी गैमेट बड़ी है, फीमेल वन, सो वी कॉल इट एज एन oogamous. क्या बोलते हैं हम इसको, oogamous. तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी वो कुछ इस टाइप की हो सकती है, और गैमेट्स जो है वो मेरे फ्लैजुलेटेड भी हो सकते हैं, दे मे बी नॉन फ्लैजुलेटेड. गैमेट्स मेरे फ्लैजुलेटेड भी हो सकते हैं और नॉन फ्लैजुलेटेड भी हो सकते हैं. Now if I make a diagram of the sexual reproduction, then we can see here कि sexual reproduction होगा कैसे. इसके अलावा हमारे पास दो वर्ड हमें याद रखने हैं, एक है एंथ्रीडिया, एक है आर्कीगोनिया, या फिर हम इसको कह सकते हैं oogonia. एंथ्रीडिया रिलीज करता है एंथेरोजोइड्स. क्या रिलीज करेगा, एंथेरोजोइड्स. देखो जू वर्ड आ गया तो एनिमल, तो कहीं ना कहीं भैया फ्लैजेला लेके घूम रहे हो सकते हैं, ठीक है. एंड आर्कीगोनिया या oogonia, यानी कि ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द मेल पार्ट, एंड आर्कीगोनिया और oogonia जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, फीमेल पार्ट. इनकी शेप्स अगर मैं देखूं तो ये कुछ पायरीफॉर्म शेप है, पायरीफॉर्म पियर की तरह, जूसी जूसी पियर जैसे हम कहते हैं ना, तो उस पियर की तरह इनका शेप, कुछ पियर इस तरीके से होता है. So you can see the shapes of them are comparatively similar to this pear shape structure. इसीलिए हम इनको कहते हैं the gametes, they are actually moving into the water body. क्यों, क्योंकि सारे क्या है, they are aquatic. यहाँ फ्रेश वाटर है चाहे मराइन है, कहीं भी बात करें, ठीक है. तो when I say कि अब मुझे इनकी रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्क्राइब करनी है, तो मुझे इन स्ट्रक्चर्स के बारे में बताइए. What will happen कि if I say this is water, पानी है, they are found in the aquatic environment, तो ये पानी के अंदर the animals, ठीक है, जो इसके एग्जाम्पल्स हैं, now we'll be discussing that also, कि ये this is the एंथ्रोजोइड्स जो मूव कर रहे हैं इस पानी के अंदर, सो ब्यूटीफुल, पानी के अंदर मूव करते हुए. देन वी हैव दिस एज इन द आर्कीगोनियम, द oogonia. ये अगर आर्कीगोनियम या फिर oogonia है, इस oogonia के अंदर क्या रिलीज हुआ है, एक एग रिलीज हुआ है, and these are all antherozoids. इस एंथेरोजोइड्स को बनाने वाला कौन है, the antheridia,
एंथ्रीडिया ने रिलीज करे एंथेरोजोइड्स, ये गए फीमेल बॉडी के पास यानी कि आर्किगोनियम, ये उसके माउथ से एंटर करते हैं, एंटर थ्रू दी माउथ। अब हमारे गैमेट्स हमेशा क्या होते हैं, दे आर ऑल हैप्लॉइड, these gametes they are haploid, और ये हैप्लॉइड गैमेट जब हैप्लॉइड एग के साथ मिलेंगे they will form, if I have this and this, here you can see ये एंथेरोजोइड और ये एग, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, दिस इज एन, दिस इज एन, दिस इज मेल गैमेट, दिस इज फीमेल गैमेट, they form a zygote, और ये जाइगोट जो है, दिस जाइगोट विल अंडरगो meiosis, it will very fastly undergo a process known as meiosis, और इस meiosis से what I am going to get is the 4 cells, meiosis का प्रोडक्ट होता है 4 cells। अब ये 4 cells जो हैं ये कहीं जाके सेटल डाउन होंगे, तो अगर रिप्रोडक्शन करनी है तो क्या फॉर्म करेंगे, गैमीट्स बनाएंगे, और ये गैमीट्स सपोज इफ आई से दे क्लेमाइडोमोनास था, तो ये गैमीट बना रहा है बाय माइटोसिस। माइटोसिस में जो भी फ्लॉइडी लेवल है वो हमेशा क्या रहती है, सेम। तो ये गैमेट्स मेरे जितने भी बने वो सेम बने, लेकिन यहाँ पे जो मेरा जाइगोट बना था वो डिप्लॉइड बन गया था। Now this diploid has formed the 4 haploid cells, and now these 4 haploid cells they will be moving like this. They will be resulting in the formation of this particular chlamydomonas. So ये आ गया इसका reproduction. The gametes fusing inside the archegonium, or you can say in the oogonium, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। मोस्टली पियोफाइसी और रोडोफाइसी के मेंबर ज्यादा शो करेंगे इसको। प्रोडक्ट फॉर्मेशन, जाइगोट एंड आल्सो इन क्लोरोफाइसी, लेकिन मोर ऑफ जैसे जैसे एडवांसमेंट होती जा रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्रीज होता जा रहा है। सो दिस इज द क्राइटेरिया, दिस इज द वे हाउ दे आर एक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग। मूविंग टू द नेक्स्ट एज इन एग्जांपल, इफ आई टॉक ऑफ, अगर क्लोरोफाइसी की एग्जांपल की बात करें, I have a best line to learn, मेरे चाचा के पास 4 SUV, मेरे, here this chacha refers to the chlamydomonas only, the char refers to the chara, S for Spirogyra, U for ulva, V for volvox. Mugila. The chlamydomonas, the chara, Spirogyra, ulva, you could have Ulothrix also. So these are the examples. For Piophyce, very good line again I have, and that is Sare LED fuse. Sare LED fuse. For Sare it is sargassum. L for laminaria. याद है हमने कहा था जो इसका स्टोर प्रोडक्ट है वो क्या है, laminarian starch. So this is laminaria. E for ectocarpus. D for dictyota. And fuse for fucus. Sare LED fuse. The sargassum, laminaria, ectocarpus, dictyota, and fucus. Then moving to the rhodophyce. For rhodophyce, if I can say, rhodophyce के लिए the best line is छोटी सी है P P G G. The P P and G G. P for porphyra.
the Polysyphonia, Gelidium, and Gracilaria. So easy to remember the things. So here we have Chlamydomonas, Nicaria, Spirogera, Ulva, Volvox, Ulotris. Then we have Sargassum, we have Laminaria, Ectocarpus, Dictyota, and Fucus. Then we have Porphyra, Polysyphonia, Gelidium, and Gracilaria. So these all are the examples, and this is all about the Halophyta. We'll be studying the Bryophyta in our next